Hello student, today's topic is machine learning and NLP. NLP means natural language processing. Yesterday we are discussed about the various topics of artificial intelligence, and the most important topics are 4 types of topics. These are machine learning, NLP, natural language processing, automation and robotics, and machine version. We first discuss the main point where we used artificial intelligence. What are the example of artificial intelligence? Yesterday we discussed Siri, Alexa, and other smart assistant, self-driving car, robo-advisor, conversational bots, email spam filter, and Netflix recommendation. ठीक है. Next technique of artificial intelligence क्या है? There are 4 types of techniques which are used to modify the system and to upgrade the computer, future computer. One, machine learning. Second, NLP, natural language processing. 4, automation and robotic. 5, machine learning. So machine version. Machine learning क्या है? Yesterday we told what is machine learning. Machine learning is the field of study that gives computer the capability to learn without being explicitly programmed. Machine learning is one of the most exciting technologies that one would ever come across, as it is evident from the name. Is gives the computer that made it more similar to human. Human जिस तरीके से काम करता है वही करता है. So in the other way, machine learning is also the study of computer algorithm that can improve automatically through experience by the use of data. What are the types of machine learning and how many types of machine learning are used? Basically, there are 4 types of machine learning algorithm: supervised, semi-supervised, unsupervised, and reinforced. Machine learning example क्या बोला था? What is machine learning example? It is a subset of artificial intelligence which focused on using statistical technique to build intelligence computer system in order to learn from database available to it. Example क्या था? Medical diagnosis, image processing, prediction, classification, learning association, regression. So today's topic is NLP. Main point, NLP, natural language processing. Natural language processing क्या है? What is natural language processing? Natural language processing is a subfield of linguistic, computer science, and artificial intelligence concerned with the interaction between computer and human language. In particular, how to program computer to process and analyze large amount of natural language data. हम लोग natural language processing क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर जो हम लोगों का जो भाषा है, हम लोग जो लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझते हैं. क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को बोला जे मेरे को एक डिस्टेंस फाइंड करना है, कलकत्ता से चाईबासा का डिस्टेंस यहाँ से कितना किलोमीटर है और कौन सा रूट में कितना देर लगेगा, उसका ट्रेन का टाइमिंग क्या है, कौन सा टाइम में कौन सा ट्रेन है, और वेरी मेनी अदर्स थिंग्स. गूगल में हम लोग जो भी सर्च करते हैं वो हम लोग जो जब सर्च में
जब बोलते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं, वो कंप्यूटर किस तरीके से समझ में आता है कंप्यूटर को, उस ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सबफील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस concerned with the interaction between computer and human language. In particular, how to program computer to process and analyze large amount of natural language data. कैसे? Natural language processing refers to the branch of computer science and more specifically the branch of artificial intelligence or AI, concerned with giving computers the ability to understand text and spoken word in much the same way human beings can. और हम लोग क्या बोल सकते हैं? Natural language processing is a subfield of linguistic computer science and artificial intelligence. वो मैंने बोला. What is natural language processing in NLP? उसका काम क्या है? उसका काम यही है, ह्यूमन जिस लैंग्वेज में बात करता है कंप्यूटर वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता कंप्यूटर को, कंप्यूटर का अलग एक लैंग्वेज है, अलग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कन्वर्ट करता है और उस प्रोसेस में वो डेकोरेट करता है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हेल्प्स कंप्यूटर communicate with human in their own language and scales other language related tasks. जैसे एग्जाम्पल क्या है? NLP makes it possible for computer to read text, hear speech, interpret it, and measure sentiment and determine which part are important. हम लोग जो क्वेश्चन गूगल को करते हैं और कंप्यूटर को करते हैं उसका सही आंसर वो देता है। वो क्या करता है? उसको रीड करता है। समझो हम लोग एक वॉइस मैसेज सेंड कर रहे हैं और गूगल असिस्टेंट को हम लोग एक वॉइस मैसेज में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस वॉइस मैसेज को वो रिकॉग्नाइज करेगा, उस वॉइस मैसेज को रीड करेगा, उसमें कोई सेंटिमेंट है या नहीं है। समझो हम लोग बोले कि टैंक में टैंक फुल कर दो, ठीक है, तो अगर मैंने बोला इस टैंक को फुल कर दो, तो मैंने किस टैंक को बोला? वो टैंक वाटर से फुल करना है या डीजल से फुल करना है? तो उस समझो वहां पर टैंक कितना बड़ा है, वो जो प्रोसेसिंग है उसका जो सोच है, जो मेजरमेंट है, जो सेंटिमेंटल है, वो रीड करता है वहां पर। यही है एग्जाम्पल। NLP makes it possible for computers to read text, hear speech, interpret it, and measurement, sentiment, and determine which parts are important. What is the difference between NLP and NLU? NLU, Natural Language Unit. NLP focus on programming the text in a literal sense, like what was said. Conversely, NLU focus on extracting and context and intent, or its other word that was meant. उसका काम है NLU का, वो टोटल हम NLP करता है क्या? उसका जो हम लोग जो लैंग्वेज कंप्यूटर को बोला है वो रीड करता है, रीड करके वो एक भेजता है कंप्यूटर को। लेकिन NLU का काम पूरा है, वो हम लोग जो लैंग्वेज और जो क्वेश्चन हम लोग गूगल असिस्टेंट को और सीरी को हम लोग करते हैं उसका मतलब क्या है, उसका सेंटिमेंटल वो जज करता है। ठीक है, और क्या है?
NLU natural language processing. What is natural language understanding? NLU का बच्चे यूनिट और अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो. नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या है? Consider a subtopics of NLP. The main focus of natural language understanding is a make machines interpret the natural language, divine meaning, identify the context and draw insight. For example, हम लोग NLU का क्या बोल सकते हैं? Various machine learning algorithm are used to identify the sentiment, perform name entity and recognition, process sentiments, etc. NLU algorithm often operate on text that has already been standard by text pre-processing step. उसका एग्जाम्पल क्या होगा? गोइंग बैक टू आवर वेदर इंक्वायरी एग्जाम्पल. NLU के हम लोग एग्जाम्पल में वेदर हम जब फॉरकास्ट करते हैं तो NLU का एग्जाम्पल आता है. इट इज NLU which enable the machine to understand that those three different questions have the same underlying weather forecast query. After all, different sentence can mean the same thing and vice versa, and the same word can mean different things depending on how they are used. अगर हम लोग वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं और गूगल को हम लोग वेदर समझो 10 डेज का बाद या मार्च में इंडिया में वेदर क्या रहेगा, तो मार्च में इंडिया का वेदर क्या रहेगा, वो क्या करेगा? गूगल में जो डेटा है और इंडियन वेदर के बारे में जो डेटा है वहां से वो एक डेटा का ऊपर एक क्वेरी करेगा. उस क्वेरी अगले साल में और उस 10 जो एवरेज वेदर फोरकास्ट है उसको करेगा. फिर एक क्या करेगा, उसका वेदर फोरकास्ट क्या है वो एक ब्रीफली डिस्कशन में वो देगा कि उसका टेम्परेचर 30 से 40 के बीच में होगा, रेनफॉल क्या होगा. एक फोरकास्ट है. NLU का तरीके से स्टडी करके ये मिलता है. ठीक है. और क्या है NLU नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? फिर टॉपिक्स क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग 5 फेजेस फॉलो करता है. ठीक है. 5 फेजेस क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस, वहां पर जो कंप्यूटर को हम लोग जो टेक्स्ट और जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसका जो प्रोसेस होता है, ह्यूमन जिस तरीके से क्वेश्चन करता है वो तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, इसलिए कंप्यूटर को समझ में आए इसलिए वहां पर 5 स्टेज होता है. ये 5 स्टेज बिल्कुल सेम सिमिलर टू कंपाइलर डिजाइन. कंपाइलर डिजाइन में हम लोग क्या करते थे? लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स और पार्सर फेज, सिमेट्रिक और कोड जनरेशन, इस तरीके से 5 या 6 प्रोसेस वहां पर होता था. ठीक है. वो हम लोग क्या करते थे? कंप्यूटर को हम लोग जो प्रोग्राम देते थे और ह्यूमन हम कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है वो है लो लेवल लैंग्वेज, और ह्यूमन जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम या और जावा प्रोग्राम, सी प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर में हम लोग लिखते हैं, ह्यूमन लिखते हैं, वो क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में होता है. लेकिन कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज मालूम नहीं होता है, उसको चाहिए लो लेवल लैंग्वेज 0, 1 जो लो लेवल लैंग्वेज है. तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर जो प्रोसेस है और वहां पर जो सी प्रोग्रामिंग जो एग्जीक्यूट होते हैं वो तो कंपाइलर में ही होता है. तो उस कंपाइलर में लेक्सिकल एनालिसिस था,
सिंटेक्स एनालिसिस और पार्सर था, सिमेट्रिक एनालिसिस जो है वो भी था, कोड जनरेशन था। तो यहाँ पर भी क्या है, 5 फेज ऑफ एनएलपी, लेक्सिक एनालिसिस और मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है। द फर्स्ट फेज ऑफ एनएलपी इज लेक्सिकल एनालिसिस, नेक्स्ट है सिंथेटिक एनालिसिस और पार्सिंग, फिर है सिमेट्रिक एनालिसिस, फिर है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन एंड प्रैग्मेटिक एनालिसिस। इस 5 तरीके का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होता है, वो जो ह्यूमन जिस तरीके से कंप्यूटर में बात करता है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, टू कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज टू कंप्यूटर लैंग्वेज। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, automation and robotics, next part, the next path of artificial intelligence is automation and robotics. While RPA is used to work in conjunction with people by automating repetitive process, AI is viewed as a form of technology to replace human labor and automate end-to-end. RPA use structured input and logic, while AI use unstructured input and develop its own logic. ठीक है, तो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में क्या है, एआई क्या करता है, एआई खुद इनपुट देता है और मशीन क्या है, वो रीड करेगा, वो खुद की एक्सपीरियंस से वो नॉलेज गैदर करेगा, एक्सपीरियंस गैदर करेगा, फिर आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेशन जो है वो प्री प्रोसेस होगा। ठीक है, वो प्री प्रोसेस होगा और एंड टू एंड वो काम करेगा। ये बोला है आरपीए यूज स्ट्रक्चर्ड इनपुट एंड लॉजिक, वहां पर लॉजिक पहले से ही पुट किया जाएगा। What is artificial intelligence using robotics? AI in robotics helps robots perform the crucial tasks with a human-like version to detect or recognize the various objects. Nowadays, robots are developed through machine learning training. कुमारी मनीषा कुमारी, यस सर। सुन रहे हो? 5 फेज ऑफ एनएलपी क्या है बोलो? व्हाट आर द 5 फेज ऑफ एनएलपी? सर आपको आवाज क्या आ रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी? एनएलपी का मतलब क्या है वो बोलो। डॉली कुमारी, नीसू कुमारी, डॉली कुमारी, एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, उसका काम क्या है? Sir, it converts human language, means higher level language, to low level language, which can computer can, with the help of which computer can understand. ठीक है। पल्लवी कुजूर, यस सर। तुम बोलो, व्हाट आर द 5 टाइप ऑफ फेजेस आर एनएलपी? दिस फेज, नेम ऑफ दिस फेज। एनएलपी में जो 5 तरीका का फेज यूज होता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस करने के लिए
कंपाइलर डिजाइन में भी सेम था, ठीक है। वो बोल सकते हो? सर सिंटैटिक एनालिसिस, हाँ बोलो। सिंटैटिक एनालिसिस, फिर पहला होता है क्या, लेक्सिकल एनालिसिस, फिर आता है सिंटैटिक एनालिसिस, फिर होते सिमेट्रिक एनालिसिस, और फिर आता है डिस्करेज इंटीग्रेशन और पैग्मेटिक एनालिसिस, ठीक है। यस सर। तो थर्ड पार्ट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ठीक है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का what is the artificial intelligence using in robotics? Artificial intelligence robotics helps robot perform the crucial tasks with a human-like vision to detect or recognize the various objects. And क्या होता है, nowadays we basically see this robot are developed through machine learning training. And what is robotic and automation technology? Robotics and automation technology क्या है? Automation and robotics engineering is the use of control system and information technologies to reduce the need of human work. तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स to use control system and information technologies to reduce the need of human work. हम लोगों के पास जो कंट्रोल सिस्टम है और जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों को हम लोग यूज करके एक ह्यूमन लाइक प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, जिसका काम ही होगा ह्यूमन जिस तरीका से काम करता है और ह्यूमन जो काम करता है वो काम वो ही कर देगा। तो इसके अगर ए हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा और वहां पर हम लोगों का एडवांटेज क्या होगा, वहां पर क्या होगा, हम अगर ह्यूमन का काम रोबोट कर देगा तो जॉब क्राइसिस वहां पर क्रिएट होगा, जॉब नहीं रहेगा। और एक सुविधा होगा वहां पर क्या होगा, एरर नहीं आएगा, क्योंकि एरर जो करता है वो ह्यूमन करता है, रोबोट और मशीन एरर नहीं करता है। कभी भी ऐसा हुआ है कैलकुलेटर कोई नंबर को कैलकुलेट करता है तो वो कैलकुलेटर में गलत नंबर आता है, वो नहीं होता है, एरर सिर्फ ह्यूमन लोग ही करता है, ठीक है। Automation and robotics engineering is the use of control system and information technologies to reduce the need for human work in production of goods and services. In the scope of industrialization, automation is a step beyond mechanism. What is the difference between artificial intelligence and robotics? तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में डिफरेंट क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स तो मैक्सिमम चीज सेम होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर करे और ह्यूमन का काम करे और ह्यूमन जैसे सोचे और ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस हो, इस तरीके से का कंप्यूटर हम लोग बिल्ड करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन काम है। और रोबोट क्या करता है, वो ह्यूमन का काम ही रोबोट करता है, ह्यूमन जो करता है और एक्ट लाइक ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ मेन डिफरेंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में? As you can see, robotics and artificial intelligence are really two separated things. Robotics involve building robots, physical hairs, AI involves programming intelligence. रोबोट क्या है, रोबोट है फिजिकली वो बिल्ड करते हैं, रोबोट एक मशीन है, वो क्या करता है फिजिकली हम लोग बिल्ड करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो रोबोट में इंफॉर्मेशन वहां पर पुट करता है, लाइक ह्यूमन। रोबोट जो है, रोबोट ह्यूमन की तरीके से काम करता है, लेकिन उस तरीके से वो सोच नहीं सकता, उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं करता, उस तरीके से वो क्या करता है, नॉलेज गेन नहीं करता और एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है
और रोबोट के अंदर क्या करते हैं, ह्यूमन लाइक ऑल बिहेवियर, वो कोई भी काम करे तो उसके अंदर से वो एक्सपीरियंस गैदर करेगा, उस एक्सपीरियंस को क्या करेगा, नेक्स्ट अगर कोई काम करेगा तो वहां पर वो एक्सपीरियंस यूज करेगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर रियली टू सेपरेटेड थिंग्स. रोबोटिक involves building robots physically, and other part AI involves programming intelligence. रोबोटिक्स का काम है रोबोट को बिल्ड करना, फिजिकली रोबोट को बिल्ड करेगा, और रोबोट क्या कर सकता है, वो सिर्फ एक ह्यूमन तरीके से का उसका डिजाइन कर सकता है और ह्यूमन तरीके से वो फिजिकल वर्क कर सकता है, लेकिन उसका जो मेन वर्क है, वो जो सोचना और काम करने का, वो एआई करेगा, ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोबोटिक्स में और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज, नेक्स्ट डिस्कशन है व्हाट इज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इन एआई, ये तो हो गया। व्हाट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग यूज ऑफ कंट्रोल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस, तो बोल दिया हमने। What is an example of intelligent automation? Intelligent automation क्या है? Intelligence automation है the combination of robotics and artificial intelligence. With intelligent automation, organization can ensure that all required onboarding and offboarding tasks are completed. For example, when new employee are hired, they will be provided with everything they need to perform their jobs like computer access and a security card. तो इंटेलिजेंस ऑटोमेशन का काम यही है, वो जो बिल्ड करता है, वो जो कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर और मॉडर्न रोबोट वो बिल्ड करता है, वो वहां पर सब कुछ एक्सेस दे देता है, सो वो जो भी काम है वो खुद कर सकता है, ठीक है। With intelligence automation, organization can ensure that all required onboarding and offboarding tasks are completed. For example, when new employees are hired, they will provided with everything they need to perform their job like computer access and security card. AI engineering and emergent discipline focused on developing tools, systems and process to enable the application of artificial intelligence in real world context. The need for emerging discipline to guide the development of AI capabilities. Next part क्या है, machine vision. तो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का एक स्मॉल डिस्कशन था, ये क्या चीज है और कैसे काम करता है। नेक्स्ट पार्ट होगा मशीन विजन। मशीन विजन क्या है, मशीन का विजन क्या है, वो हम लोग जो मशीन डिजाइन कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसका विजन क्या है और वो कैसे काम करेगा। मशीन विजन इज द टेक्नोलॉजी एंड मेथड used to provide imaging based automatic inspection and analysis. हम लोग AI यूज करके जो फ्यूचर में ऐसा मशीन बनाएंगे जो लाइक ह्यूमन तरीका का बिहेवियर करे और ह्यूमन तरीका का वो सोचे, तो उसका काम क्या होगा। मशीन विजन इज द टेक्नोलॉजी एंड मेथड यूज्ड टू प्रोवाइड imagine based automatic inspection and analysis. For such application as automatic inspection, process control and robot guidance, usually in industry, वो ह्यूमन का जो काम होगा वो खुद ही कर लेगा।
What is the machine vision in computer vision? Machine vision system use a camera to view an image. Computer vision algorithm then process and interpreted the image before instructing other component in the system to act upon that data. Computer vision can be used alone without needing to be part of a large machine system. तो यहाँ पर काम क्या होता है, हम लोग अब जो कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में क्या करते हैं, वो समझो जूम जो है, जूम में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम में क्या करते हैं, अगर तुम लोग कैमरा ऑन करोगे तो कौन एग्जाम दे रहा है, उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका एग्जाम का प्रोसीड्यूर क्या है, कैसे एग्जाम दे रहा है, वो कहीं पर से कुछ इंफॉर्मेशन, तो तुमको पूरी तरीके से गाइडेंस करने के लिए, और उस इमेज को एक रिकॉर्ड होता है उस इमेज का। समझो इमेज का रिकॉर्ड कैसे होता है, गूगल में, गूगल असिस्टेंट पे अगर तुम एक पेज क्रिएट करो खुद का, जो जहां पर तुम्हारा पिक्चर होगा और तुम्हारा सब कुछ डिटेल्स होगा, ठीक है, फिर तुम्हारा इमेज लेके अगर कोई गूगल लेंस जो होता है, शायद वो यूज किया होगा, तो गूगल लेंस में क्या होता है, अगर कोई चीज का इंफॉर्मेशन पहले से ही होता है तो उसका इमेज लेके अगर गूगल लेंस में हम लोग सर्च करेंगे तो वहां पर क्या मिल जाएगा, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो हम लोगों को मिल जाएगा। In machine vision system, user a camera to view an image. Computer vision algorithm then process and interpret the image before instructing the other component in the system to act upon that data. Computer vision can be used alone without needing to be part of a large machine system. वहां पर हम लोग छोटा छोटा करके यूज करते हैं, ठीक है। What is machine vision in business? बिजनेस में machine vision कैसे यूज होता है? One of the simplest way to understand a machine vision system is to consider in the eyes of a machine. The system uses digital input that captured by a camera to determine action. Business use machine vision system in a variety of way to improve quality, efficiency and operation. What is the difference between machine vision and computer visions? Computer visions और machine visions के अंदर difference क्या है? Computer visions is traditionally used to automate image processing, and machine vision is the application of computer vision in real world interface such a factory line. Machine vision क्या करता है, रियल वर्ल्ड में जो इमेज होता है, रियल वर्ल्ड का जो इमेज होता है उसको कोई कंपनी का डेवलपमेंट के लिए और कोई काम का जो इम्प्रूवमेंट होगा उसके लिए, और कहीं पर एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है इसलिए यूज किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर विजन है, उसके अंदर जो इमेज है उस इमेज लेके वो काम करता है, वो इमेज के ऊपर काम करता है, वो इमेज का डेवलप करता है, वो उसमें क्या करता है, क्रिप्टोग्राफी में कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, वो उसके अंदर जो इमेज है उसको लेके वो काम कर सकते हैं। लेकिन मशीन विजन का मेन फंडा है वो रियल टाइम यूज होता है और रियल टाइम इमेज लेके वो काम करता है। What is the difference between image processing and machine vision? An image processing, an image is processed, that is transformation are applied to an input image and output image is returned. मैं बोला वो क्रिप्टोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में एक इनपुट भेजते हैं और एक आउटपुट निकलता है, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेटा हम लोग उसके अंदर भेज सकते हैं। लेकिन क्या है, और इसको कहते हैं कंप्यूटर विजन यूजेस इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम टू सॉल्व, और क्या है
the image processing, an image is processed, that is transformation are applied to an input image and output image is returned. Computer vision uses image processing algorithm to solve some of its tasks. The main difference between these two approaches are the goal. What is machine vision in simple term? Machine vision simple term में क्या है? Machine vision is the technology and method used to provide imaging-based automatic inspection and analysis. For such application as automatic inspection, process control, and robot guidance, usually in industry. And computer vision का example क्या है? Computer vision is necessary to enable self-driving cars. Manufacturers such as Tesla, BMW, Volvo, and Audi use multiple camera, radar, and ultrasonic sensor to acquire image from environmental so that their self-driving car can detect object, lane marking, sign, and traffic signal to safely drive. कंप्यूटर विजन में क्या है? कंप्यूटर विजन में है वो उसके अंदर जो इमेज है वो खुद जो इमेज कलेक्ट करता है उसके ऊपर वो काम कर सकता है. जो टेस्ला, BMW, वॉल्वो, ऑडी जो कार है उसके अंदर क्या है, एक कैमरा होता है, उस कैमरा में इमेज लोड होता है, उसके तरीके से उसका सेंसर काम करता है. सामने कोई कार ड्राइव कर रहा है तो उसमें सामने कोई बम्पर है या नहीं है, उसके रोड कैसा है, उससे क्या मालूम पड़ता है, उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा. तो इस तरीके से वहां पर काम करता है. ठीक है. तुम लोगों का प्रेजेंट दिन के दिन तो कम हो रहा है. आज तो बहुत ही कम प्रेजेंट हो. वेदर की वजह से करंट नहीं है क्या? हेलो. यस सर, इधर तो है करंट, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है. लेकिन बहुत कम प्रेजेंट है तो सर थोड़ा करंट ज्यादा बहुत होता तो कम अच्छा रहा होता ना. है, इसके वजह से सर ज्वाइन नहीं कर पा रहा आज. थोड़ा मौसम थोड़ा. हाँ वो तो मेरे को मालूम है. अब तो विंटर है फिर भी यहाँ पर करंट मिल रहा है, लेकिन समर में तो यहाँ पर बहुत कम करंट रहता है. जी सर, अभी हम लोग तरफ नहीं है सर. 2 दिन से बहुत दिक्कत हो रहा है. ओके सर. तो 2 दिन से करंट नहीं है. वो आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा रह रहा है, बहुत कम. थोड़ा थोड़ा रह रहा है. यस. तो कोरोना सर, एक का जो क्वेश्चन सिचुएशन है था. कॉलेज का. हाँ बोलो. सर, जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, मतलब उसमें जो कैमरा ऑन होता है, तो उसको बोल सकते हैं कि मशीन विजन का एग्जाम्पल है. ऑनलाइन का मशीन विजन का एग्जांपल, हाँ ठीक है बोल सकते हैं. मशीन विजन का एग्जांपल है क्योंकि वो क्या करते हैं, रियल टाइम सिनेरियो वो दिखा सकता है. ठीक है. लेकिन कंप्यूटर Yes, sir. विजन में क्या होता है, वो कंप्यूटर विजन में वो नया डिजाइन का जो कार है, कार के अंदर देखो कि एक कैमरा है, तो वो कार के सामने क्या होगा, एक मैप क्रिएट होगा. अगर कार आप पीछे कर रहे हो तो वहां पर शो होगा कि वहां पर आपका कार किसी चीज पे टक्कर हो या नहीं हो. और क्या होगा, जो नई मॉडल का जो कार आया है BMW और बहुत अच्छी तरीके से का जो कार है, वो सामने बम्पर हो या होगा या नहीं होगा, उसके तरीके से उसका जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाएगा. ठीक है. तो उसकी Okay, sir. तरीके से अगर समझो स्पीड 80 या 90 के आसपास हो, लेकिन वहां पर अगर सामने बम्पर आ जाएगा तो स्पीड खुद ही 40 के अंदर आ जाएगा. ठीक है. तो वो ठीक है, डिफरेंस सर. है. मैं इसका जो अच्छी तरीके से जो जब इसका डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा, ये तो सिर्फ एक तुम लोग को आइडिया देने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज है वो मैंने बोला. ठीक है. तो अभी भी क्लास होगा, फरवरी में शायद क्लास होगा, तब मैं एक एक चीज को ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, तब एग्जाम्पल देके बोल दूंगा कि कैसा काम होता है और किस चीज पे काम होता है, उसका और एग्जाम्पल क्या है. ठीक है. उसका बहुत सारा प्रोसेस है.
वो बहुत सारे टेक्निक में वो काम करता है, वो मैं जितना हो सके मैं बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है। क्लास तो तुम लोगों ने लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जितना टाइम हो सके मैं बोल दूंगा। ओके सर। तुम लोगों का शायद टाइम खत्म हो गया, लेकिन एक चीज बोलना है, शायद तुम लोगों का एग्जाम होगा, वो इंटरनल है ना, सेकेंड इंटरनल यस सर। 23 जनवरी से, तो 22 वहां से है पर सर। शायद 5, हाँ बोलो, 22 22 से है से है। सर। यस सर। हाँ, तो मेरा जो 2 सब्जेक्ट है, इंटरनेट सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो टॉपिक मैंने बोला है, मेन टॉपिक समझो, मशीन लर्निंग क्या है, रोबोट द फेज ऑफ एनएलपी, ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा, जो तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है उससे ही 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और 2 या 3 डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो जो भी पढ़ा हो अब तक और जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया है वही से ही मैं दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा।